आज आज मैं आपको उसी से आगे उसी उसी यूनिट के आगे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि भाई एक एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से भागीदारी होते हैं और उनका क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसी तरह जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे होता है, कैसे क्या क्या होता है, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, खाली इतना बता दीजिए आप लोग। आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके। तो आज जैसा मैंने कहा आपको कि मैं आज आपको बताऊंगा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी नो दैट द अनएम्प्लॉयमेंट problem is one of the serious challenges of this country, especially after the recession of 2008. Lesser number of job vacancies even in emerging countries like India, China, which are least hit by the recession due to the higher inflation rate and slower pace of economic growth. Unemployment is one of the main reasons for poverty, as also one of the causes for rising crime rates and suicides। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक आदमी कहीं काम नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा हुआ है, इधर मोहल्ला में घूम रहा है, इधर बैठ रहा है, तो क्या होगा? उसके जहन में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, गलत चीजें पैदा होंगी, बिकॉज उसको घर चलाना है, खुद के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। तो एक गलत रास्ता भी वो अख्तियार कर सकता है। किसी का मर्डर भी कर सकता है, रॉबरी भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, या एकदम नहीं कर सका तो इसका एक रास्ता निकलता है कि भाई हम सुसाइड ही कर लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, बहुत सीरियस इशू है किसी भी कंट्री के लिए, कि इसमें इंसान अपना जान देने के लिए भी तैयार है ड्यू टू दी अनएम्प्लॉयमेंट। कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, द सोर्स ऑफ इनकम इज जीरो। सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, क्या करे वो? कोई रास्ता नहीं। जब नजर आता है, देख रहा है उसके सामने उसके बच्चे भूखे हैं, उसके घर वाले भूखे हैं, तो वो क्या रास्ता अख्तियार करे? चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं करना है, किसी का माल हड़प नहीं करना है, तो क्या करे बेचारा? उसके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, सुसाइड करने का। तो वो सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह भी करता है। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, है ना? इरेडिकेटिंग it is one of the tough tasks and major concern, not just for the government but also for those who can actively contribute to the job creator and not job seeker। ये सिर्फ एक बंदे के ऊपर या एक चीज के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि इट इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। ओके। तो इससे कैसे छुटकारा मिले? हाउ it will be removed in our nation or in our country? So the system of education is India's today's creates storehouses of knowledge,
devoid of creating thinking and new ideas. It is the stereotyped and the root learning that our system encourages. Our education system, bearing a few expectations, lack the foundation to the nature entrepreneurs who are willing to take risk, learn from mistakes, and creates empires of their own. We rear children to become a doctor and engineer today without knowing where their true ability lie. And these pseudo educated, knowledgeable citizens find it hard to contribute to the nation's economy effectively as well as their own income and pockets. Today in India, we face a shortage of skilled labor and manpower in blue collar jobs like those of electricians, plumber, coconut tree climber, and so and so. The person involved in these procession today can demand more as the supply of such worker is low. Various subsidy and welfare schemes by the government have also been given birth to the new practice of full stomach without work through free rice, television, and grinder scheme by the some government. This scheme encourages laziness and lackluster attitude towards the taking up job and eventually erode the government. Hence, welfare scheme should not be allowed to go overboard. After all, in the long run, teaching a person to fish is much more valuable than feeding him a fish every day. Bringing in a skilled labor force for such manual works and also fixing a scale of wages for them will help encourage people to take up these jobs as well as provide the industry with sufficient manpower in the form of laborer. Dear students, जैसा हम सभी जानते हैं, बल्कि हम देख रहे हैं अपने आंखों से कि किस तरह से अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज करते ही चले जा रहा है। बिल्कुल ही जॉब खत्म होते चले जा रहा है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? क्या रिसेशंस है, इन्फ्लेशन है, क्या है? तो अगर हम इंतजार में ही बैठे कि गवर्नमेंट कुछ जॉब्स लाएंगे, गवर्नमेंट भी अगर जॉब नहीं ला रहा तो लुभाने के लिए कई कई स्टेट वाले क्या करते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे देते हैं, टेलीविजन दे देते हैं, मिक्सर ग्राइंडर दे रहे हैं, बहुत सारे स्कीम चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको लगता है कि भाई अनएम्प्लॉयड पीपल को लगता है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में तो सब कुछ मिल रहा है, काम करने की जरूरत क्या है, राशन तो आ ही जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे और एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी को पड़ रहा है कि कुछ काम करने की जरूरत नहीं, फ्री में राशन लेंगे, खाएंगे पिएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट होता ही नहीं है पीपल का। तो क्या ऐसा चीज हो कि भाई एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं भी है तो वो सेल्फ स्किल्ड मैन बन जाए? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से आप वास्ट नॉलेज, यू कैन ओन द वास्ट नॉलेज by the way of education. Education leads your life in a proper and prosper way.
Education bring prosperity in your life. Education one of the most important tool to survive in this country. तो एजुकेशन ही सब कुछ है, और एजुकेशन ऐसा हो जिससे आपके अंदर एबिलिटी पैदा हो। ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन डिग्री के नाम है, डिग्री ले लिया मैंने, ग्रेजुएट कर लिया है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया मैंने, एमबीए कर लिया मैंने, पीएचडी कर लिया, डॉक्टर डिग्री ले लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया। नो, इट मस्ट इनहांसेस योर नॉलेज, स्किल। आपके अंदर एक स्किल को पैदा करना ही मेन मकसद होता है एजुकेशन का। सिर्फ पेपर को पा लेना एजुकेशन के लिए, सिर्फ एक डिग्री का हासिल कर लेना, नॉट इज पॉसिबल। लाखों करोड़ों लोग ग्रेजुएट बेकार बैठे हुए हैं। अभी एक स्टेट में क्या हुआ कि एक नाली साफ करने के लिए एक वैकेंसी का ये हुआ, निकला। वैकेंसी तो है ही नहीं, अब वैकेंसी निकला, नाली को साफ करना है, गंदा गंदा नाली, गवर्नमेंट का जॉब है, 25-30 हजार मिलेगा, सबसे लोअर ग्रेड का है। तो उसमें जो एप्लीकेशन आया उसमें 90% नहीं, 90 लोगों का ऐसा एप्लीकेशन था जो कि पीएचडी डॉक्टर डिग्री किए हुए थे। अब सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कितना ज्यादा है। पीएचडी करने वाले लोग जो 5 साल में थीसिस को कंप्लीट करके पीएचडी अवार्डेड होते हैं, मेहनत से ग्रेजुएशन किए, मास्टर डिग्री किए, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम करके पीएचडी में पास होके अवार्ड हुए, थीसिस लिखे, सब कुछ हुआ, और उनके पास जॉब ही नहीं है। हाँ, वो एक नाली साफ करने के लिए, या चपरासी का नौकरी है, प्यून का नौकरी भी करने के लिए रेडी है, वो अप्लाई कर देते हैं। नो, if the unemployment problem is being rooted in our country, in our nation, definitely it should be eradicated very soon. Otherwise, it will kill us, मार देगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, खाली दिमाग रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलेगा कि चलो चैन छीना जाए, चोरी किया जाए, डाका डाला जाए, या और एकदम डिप्रेशन में चला गया तो सुसाइड करने का सोच सकता है। क्योंकि काम जरूरी है, काम के बिना तो चल ही नहीं सकता है। घर चलाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पैसे की जरूरत है, तो हाउ इट विल बी सर्वाइव्ड? द सर्वाइवेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। इट इज अ रूट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर इंक्रीजिंग। हर दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते चले जा रहा है ना। एजुकेशन सब लेते हुए चले जा रहे हैं, एमबीए चले तो एमबीए सब एमबीए भी कर ले रहे हैं। तो कैसे इसको ठीक किया जाए? तो उसके लिए बोला जा रहा है कि एजुकेशन तो आप लें, लेकिन ऐसा एजुकेशन लें कि जो खुद को सेल्फ स्किल्ड बना सके, है ना। खुद से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का ताकत, एबिलिटी पैदा करें। यही एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप नौकरी के लाइन में मत खड़े रहिए, आप ऐसा काम कर दीजिए कि नौकरी आप लाइन दे के देना स्टार्ट कर दें। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। यही एंटरप्रेन्योर होते हैं। पता ना कि इमदाद की तवक्को रखता है क्या किसी से, मतलब मदद की तुम किससे आस रखता है? इमदाद की तवक्को रखता है क्या किसी से? बेदार कर खुद ही को और काम ले खुद ही से। खुद ही को जिंदा कर, खुद ही से काम लेना। क्यों दूसरे पे डिपेंड करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब देगी तो हम जॉब करेंगे? नहीं, मैं खुद ही ऐसा काबिल बन जाऊंगा, ऐसा एबिलिटी लेके आऊंगा, ऐसा अपना दिमाग लेके आऊंगा, ऐसा इनोवेशन करूंगा कि मैं दूसरे को ही
एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। समझ रहे ना बात? मेरी आवाज आ रही है? कोई भी एक हाथ आदमी रेस करे। ओके, तो जैसे फिर बोल रहे ना कि इंडियाज नीड मेनी मोर टाटास एंड बिरलास एंड अंबानीज। और चाहता है, टाटा नीड also many more Tatas, Birlas, and Ambanis to increase the output of our manufacturing sector. India today seriously need to grow in the manufacturing sector to sustain its high GDP rates. We as youngsters should pool in our ideas and work toward creating a new entrepreneurship ventures. As job creators, we can form the part of India that offers livelihood and support to millions. Youngster with the idea for venture should not hesitate to take risk, but should do what their heart tells them to do and not follow the head. Eradication of unemployment and creation of jobs is the combined effort of the government and the spirited and dedicated citizens with a vision. Let us strive to be one among them. For reduction of unemployment, entrepreneurship in a small and tiny sector industries, both in manufacturing and service sector, is imperatively needed. Thus, the role of entrepreneur and its significance in generation of employment opportunities, we can be depicted under the following criteria. The first criteria for eradication the unemployment problem for the nation, establishment tiny, micro and small scale enterprises. समझे? है ना? इंडिया को और बिरला, टाटा, अंबानी जैसे लोग चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। और यही तभी मुमकिन है, ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर हैं, है ना? एक एंटरप्रेन्योर 100 इंजीनियर को अपने पास रख सकता है, एक एंटरप्रेन्योर 100 एमबीए को अपने पास रख सकता है, एक एंटरप्रेन्योर जो जाहिल लोग हैं उसको भी 1000 10 लाख रख सकता है जो लेबर ग्रेड के होते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर ही है जो एम्प्लॉयमेंट को प्रदान करते हैं। द एंटरप्रेन्योर हु क्रिएट्स द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, है ना? तो कैसे हो भाई, कैसे हो इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द कंट्री? The establishing of micro, small, and tiny enterprises. Tiny means छोटा, micro means और थोड़ा सा छोटा से थोड़ा सा छोटा, small and medium enterprises. भाई कंपनी खोलना पड़ेगा. The role of entrepreneur in establishment the above type of enterprises is perceived as a powerful medium to address the several socio-economic issues and the chief among them generation of employment opportunities for the millions. In a developing economy like India, where population pressure is quite high and job employment is limited, the role of entrepreneur is very much significant. Entrepreneurial development gives rise to economic independence through self-employment, creation of tiny, micro, and small enterprises by the entrepreneurs can lead to creation of both self-employment and wage employment opportunities, thereby solving the problem of unemployment in the country. Okay. Giving emphasizes upon the village and cottage industry also.
Village and cottage industries plays a very vital role for the overall economic development and eradication of poverty as well as unemployment problem of the nation. Upliftment of economically backward section of the society, we can possible its self-employment opportunities can be provided at the grassroots level to enable these people in the backward region of the state to set up village and cottage industries. Government has implemented several anti-poverty programs, बहुत सारे programs establishment किया, and the importance of entrepreneur in the cottage and villages industry sector has been clearly acknowledged by the Mahatma Gandhi by his policy priorities in the village upliftment, including khadi and village industries, in his famous constructive program in 1922. Prior to independence, cottage industries and handicraft production located in the rural areas has occupied a distinct place in Indian economy because of their high potential in employment generation and income creation, especially in the rural and backward areas. As such, entrepreneur can play a significant role in the setting up and reviving the cottage and village industries, thereby creating employment opportunities to a large number of people living in rural and backward pockets of the country. As we know that the as we know that the cottage and village industries plays a very important role. So we should emphasize to re-establish the cottage and village industries as quickly as possible. पहले हम लोग देखते थे भाई घर के आगे, बहुत पहले की बात है, बचपन के, हम देखते थे कि मेरे घर के सामने जो है ना, मोमबत्ती बनाने वाला या गुड्डी बनाने वाला पतंग, है ना, लट्टू बनता था, गोली बनता था, वो सारी चीजें आज नजर से ओझल हो चुकी हैं। कहीं मैंने मेरे घर के बगल में मतलब 5 चीज तो हम अपने आँख से देखे हैं। मेरे घर के सामने गुड्डी बनाया जाता था। ठोंगा जो बनता है ना, जिसमें सामान दिया जाता है, वो बनता था। बेचारा पेपर से लाता था, कटिंग करता था, अपना लाई बनाता था, उसे सटा के बेचता था। गुड्डी बनाता था, ठीक है, अपने हाथ से गुड्डी बनाता था। लट्टू, इवन लट्टू, है ना? झाड़ू, फूल झाड़ू भी, फूल झाड़ू तो नहीं, हाँ शायद नारियल झाड़ू, हाँ यस, नारियल झाड़ू। तो ये सब बहुत सारे घरों में चलता था, छोटे छोटे उद्योग होते थे। बट राइट नाउ all the industries are, all these types of industries are eradicated, खत्म हो गया, है ही नहीं। So we should emphasize, the government should emphasize on this sector as quickly as possible for the poverty, for the eradication of the poverty and unemployment problem of the nation. गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि यूटिलाइजिंग द सरप्लस लेबर फोर्स इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडिया इज primary producing country. These characteristics features is further accentuated by this seasonality feature of the agriculture. जैसे हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सीजनल सीजन पे चलता है। धान की खेती का अलग एक सीजन होता है, और कुछ जो भी होता है वो सब एक सीजन के हिसाब से ही चलता है। Therefore, a large part of the year people remain more unemployment. तो अब धान की खेती लगा के बैठ गया, आगे क्या होगा अब इंतजार में है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ the unemployment of this chronic phenomena in agriculture, where the more people work in the field than actually required, so that surplus labor force is transferred and utilized by the entrepreneur in non-farm sector activities like small tiny cottage and village industry, which are labor incentive in the nature. तो जो
जो जो फार्मर्स अपने धान को लगा देते हैं या कोई भी चावल को लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर दे आर खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, फ्री है, लेजी में बैठे हुए, कोई काम नहीं धंधा नहीं, शाम में बैठ के बात आदमी के साथ दिन भर ऐसे ही गुजर गया। तो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि भाई कुछ कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज कुछ हो, जिससे वो अपने खाली वक्त को वहां पे इस्तेमाल करके जॉब कर सके, समझ रहे ना? तो यही है, द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दिस वे, द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज पॉसिबल। आवाज आ रही है? ठीक है, आज भी इतना ही रखा जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास करेंगे, है ना, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आप एक 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 करके ये कर दें, एग्जिट मार दें। अटेंडेंस हो गया है तुम लोग का, ठीक है ना? ठीक है, एग्जिट कर रहे हैं।